Okay, I have started recording now. So this is what 500 per every 6 months. And this 500 is what he pays this much amount. That means it is premium. Premium ऐसे ही भरा जाता है ना? Yes, premium ऐसे ही भरा जाता है. So this is what premium. To be specific, amount of premium. Amount of premium is 500 every 6 months. So let's bring it back on the annual platform. So how much is the amount of premium? It would be how much? Every 6 months 500. So 500 into 2 annually. Or you can say per annum. You can also say it, call it as per annum. So क्या हो जाएगा? 1000 per annum amount of premium. अब हमें नहीं पता रेट ऑफ प्रीमियम क्या है. हमें पता है कि रेट ऑफ प्रीमियम क्या है? नो. हमें इतना पता है कि उस रेट ऑफ प्रीमियम में कुछ एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं. उस रेट ऑफ प्रीमियम में कुछ एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं which is 10%. Why? Because of unfavorable medical reports. Okay, so मान के चलो rate of premium is X%. तो ये जो रेट है, ये इसमें थोड़ा सा कुछ एडिशन हो रहा है which is 10% एडिशन. This addition is how much? 10% addition. Okay, काफी 2-4 लोगों ने ये कल सॉल्व किया था, but I was a little bit confused because of that answer. Okay, so yes, so rate of premium is X%. So हमारे पास पॉलिसी वैल्यू है. हमारे पास पॉलिसी वैल्यू है. Yes, policy value is given to us. Policy value is how much? 20,000. Policy value is 20,000. So for amount of premium, I can put an expression for amount of premium. But उससे पहले मुझे इस additional charge के लिए कुछ expression बनाना पड़ेगा. Okay, so how much additional I will have to pay? I'll have to pay 10% more over the ordinary rate. Okay, so actual rate of premium considering additional rate. क्या हो गया ये actual rate of premium considering additional rate? X% मेरा actual rate है, इसमें इसका 10% add हो रहा है. Remember this thing. X का ही 10% add हो रहा है. 10% over ordinary rate. ये rate of premium मतलब क्या है? Basically ordinary rate है. Ordinary rate मतलब जो है वो है. ये क्या है? Special rate है. Why special rate? Something is different. Something is added to it because of certain conditions. Okay, so this is what ordinary rate. This is what ordinary rate. Yes, screen दिख रही है सबको? Is it visible? Okay, Sanika, there's something, some problem on your side only. Okay, let's check it out once. So annual rate of premium considering additional rate. This is what? This is special rate of premium. इसको उन्होंने क्या किया है? इसको उन्होंने बोला है special rate of premium. और इसको बोला है ordinary rate. Okay, तो yes, अभी देखते हैं फिर actual rate of premium बनता कितना है? This is what? X%. 10% of X, that means what? 10 by 100 of X. Okay, so X by 100 plus 10X by 100 %. This complete thing is %. है ना? Just wait. ये complete चीज को हम लोग % ही रखते हैं. Okay, let's keep it as %. Keep it as %. That would be better. Okay, so ये हो गया तुम्हारा actual rate, मतलब special rate. Why special rate? Because it is considering everything, which everything as in it is considering the fact which has come
into picture due to unfavorable medical reports. Okay, so ये इतना रेट बढ़ गया. ओके भाई, कभी भी तुझे प्रॉब्लम हो सकता है, हम वो कंपनी क्या करेगी, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा लेने का सोचेगी. ओके, तो इसलिए 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स इतना अमाउंट उसमें ऐड हो गया. तो ये कितना ऐड हो गया? बेसिकली इट इज 0.1. इट इज व्हाट? 0.1. ओके, तो ये ऐड करते हैं. हाउ मच इज दिस? 1.1x%. इतना एक्चुअल स्पेशल रेट ऑफ प्रीमियम हो गया. अब हम लोगों को ये एक्स फाइंड आउट करना है. ओके, तो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, आई मीन एक्सप्रेशन रखते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम के लिए. सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम? यस, दिस स्पेशल रेट 1.1x% ऑफ व्हाट? ऑफ पॉलिसी वैल्यू, ऑफ पॉलिसी वैल्यू. और ये कितना है अमाउंट ऑफ प्रीमियम एनुअली? एनुअली कितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम है? 1000 ऑफ 20,000. तो ये गया, ये भी गया. ओके, ये 200 यहाँ पे डिवाइड में लाओ. 1.1 इक्वल टू x. तो ये गया, दोनों गए, फिर कितना बचा? 50 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू x. तो ये आता है समथिंग 50 डिवाइडेड बाय 11 विल गिव यू 4.5454. ओके, 4.5454. यही आया था, 2-3 लोगों को यही आया था. ओके, अब ये x आया है हमारे पास. ओके, दिस इज परसेंट. ओके, तो फिर इतना मिला हम लोगों को. सो 4.54% इज व्हाट? x आया है, मतलब ऑर्डिनरी रेट ऑफ प्रीमियम आया है. तो ऑर्डिनरी रेट ऑफ प्रीमियम. और स्पेशल रेट कितना है? स्पेशल रेट इज 1.1x%. Special rate of premium is 1.1x%. So which is equal to 1.1 into 4.54, which is coming out to be, yes, into 4.54. 4.994, which is approximately 5%. Okay, तो अभी तुम्हारे डाउट्स देखते हैं क्या क्या डाउट्स है. यस, रवि का भी आया था. एंड काफी सारे, वो जानवी करके कोई, उसका भी आया था. आई थिंक मतलब 2-4 लोगों का आया था, मुझे बस 1-2 नाम याद है. सो 2-4 लोगों को ये आंसर आया था, बट आई वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज आंसर दे हैव गिवन इज वाज इन सम अनदर फॉर्म. देयरफॉर आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि ऐसे कुछ तो फिर गड़बड़ है वगैरह ऐसा. ठीक है, सो एक बार देखते हैं क्या क्या किया हम लोगों ने. लेट्स चेक इट आउट. क्या क्या दिया था? वो बंदा जो है वो 500 रुपए पे कर रहा है एवरी 6 months. ओके, फॉर हिज लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 20,000. एंड सिंस वो एवरी 6 months पे कर रहा है, हम लोगों ने उसको एनुअल प्लेटफॉर्म पे लाया, विच इज 500 into 2. सो एनुअली वो पे कर रहा है 1,000 per annum. ओके, नाउ लाइफ इंश्योरेंस कितने का है? 20,000 का है, मतलब पॉलिसी वैल्यू 20,000 का है. तो उसके बाद भी हमें कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पे दी है. इफ प्रीमियम चार्ज इंक्लूड्स एन एडिशनल 10% ओवर ऑर्डिनरी रेट. जो जनरल रेट है, मतलब ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था, उसमें 10% ज्यादा इंक्रीज हुआ है. क्यों इंक्रीज हुआ? 10% इंक्रीज क्यों हो गया? बिकॉज दे फाउंड सम अनफेवरेबल मेडिकल रिपोर्ट्स. देयरफॉर दे हैव इंक्रीज्ड द रेट, इंक्रीज द रेट. तो फिर रेट इंक्रीज किया, कितने से इंक्रीज किया? दे हैव इंक्रीज्ड इट बाय 10%. 10% ऑफ व्हाट? ओरिजिनल रेट विच इज x. सो 10% ऑफ x, 10x by 100. तो ये हो गया 10x by 100 which is additional rate he will have to pay. Obviously 10% of what? Ordinary rate. Getting my point? Okay, 10% of what? Ordinary rate. So क्या हो गया फिर? ये पूरा कैलकुलेशन करके I got 0.1x. So x% है, उसमें 0.1x ऐड करना है. So which will give me 1.1x. तो ये हो गया मेरा
changed rate of interest, rate of premium, चेंज किया हुआ बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल मेडिकल रिपोर्ट्स. ओके, तो उस वजह से फिर मैंने फिर नया एक्सप्रेशन बनाया कि वो जो 1000 का प्रीमियम वो दे रहा है 1.1x% इंटू 20,000, तो ये 0 कट हो गए. And then I got 200 in division, and after doing this I got x as 4.54%. so this is my ordinary rate of interest जो कि general decide हुआ था. and फिर ये special rate of interest because उसमें क्या add हुआ है, उसमें because of unfavorable medical reports एक certain increment उन्होंने दिया है. ओके हाँ, ये 1000 क्यों लिया, उसका रीजन ये है कि वो 6 months का दिया हुआ है ना, and we are working on per annum, we are working on per annum, therefore it is multiplied by 2. okay, so I hope it is cleared everything. okay, हाँ, अपूर्वा बोल रही है कि न्यू चैप्टर, हाँ मंडे से मैं M1 का चैप्टर लूंगी, मे बी मैट्रिसेस आई वुड बी स्टार्टिंग. ओके, डिसाइड तो यही हुआ था कि M1 M2 मुझे कुछ नहीं लेना है, लेकिन अभी टाइम ऐसे आया कि M1 M2 दोनों लेना पड़ रहा है. ठीक है, सो वक्त की बात है और क्या कर सकते है ना. yes, I'm going to start a new chapter of M1 only, which is your matrices start करूंगी. मैंने तो अभी तक मेरे दिमाग में भी नहीं था कि M1 लेना भी है मुझे तुम लोगों का. अभी मैं आज सिलेबस देखूंगी एंड मे बी मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिकॉज बाकी के चैप्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट है, तो फिर थोड़ा साइड में रखूंगी मैं उनको. ओके, थैंक यू. ओके ओके ओके, चलो. सो अभी फिलहाल हमने डिसाइड किया था कि इंडाइसेस बोल रहे, इंडेक्स नंबर्स का रिवीजन करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन. ओके, आई ओपन दैट इंडेक्स नंबर वाला फाइल जिसमें हमने सब फॉर्मूले ऑलरेडी लिस्ट आउट किए हुए हैं. हाँ, ये वाला. ठीक है, कोई बात नहीं. I'll just open the text book because फिर वो कोई टॉपिक मुझसे मिस नहीं होगा, फिर इसलिए मुझे रेफरेंस के लिए सही रहेगा वो. So I'll just open the text book. ये तो 12th science. रवि ने बहुत बड़ी लाइन बोल दी बाबा. रवि, uh, 72. ओके, सो इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने काफी सारा बेसिक बहुत एकदम डीप में पढ़ा है चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज एक्चुअली मतलब रिलेट कर सकते हैं हम लोग अपने नॉर्मल इंडाइसेस से, निफ्टी से, सेंसेक्स से. ओके, काफी सारी चीजें हम लोगों ने सीखी है, लेकिन अभी आज जो हम लोग रिवीजन करेंगे दैट इज जस्ट ए लाइक तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, ऑब्वियसली तुम्हारा एग्जाम गूगल फॉर्म पे होगा. ये जो 1-2 टेस्ट है मैं एमसीक्यू के लूंगी, लाइक दिस संडे एंड नेक्स्ट संडे, एंड उसके बाद जो संडे होगा दोनों चैप्टर का मिक्स टेस्ट रहेगा 30 मार्क्स का. ओके, सो दिस विल बी द पैटर्न फॉर योर टेस्ट. सो एक टेस्ट हम लोग इस ऐसे रखते हैं नॉर्मल एमसीक्यू वाला और हर एक चैप्टर का, एंड देन नेक्स्ट टेस्ट जो रहेगा वो दोनों का रिटर्न रहेगा 30 मार्क्स का, 15 मार्क्स का वेटेज रहेगा हर एक चैप्टर का. ओके, सो दिस वुड बी द वे. सो हम लोगों ने क्या क्या देखा था इंडेक्स नंबर्स में? वेरी बेसिक थिंग इट इज. ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि इंडेक्स नंबर हम लोग फाइंड आउट क्यों करते हैं. इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या बताता है हम लोगों को? चेंज बताता है, चेंज इन प्राइसेस, चेंज इन क्वांटिटीज, चेंज इन ये वैल्यू. वैल्यू मतलब एक्सपेंडिचर, याद आ रहा है? ओके, क्या बताता है हम लोगों को? चेंजेस इन प्राइसेस, चेंजेस इन quantities, changes in value.
और एक्सपेंडिचर। ये सब चीजें हम लोगों को कौन बताता है? इंडेक्स नंबर बताता है। जब वो चेंजेस इन प्राइसेस बताएगा तब हम उसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। जब वो चेंजेस इन क्वांटिटीज बताएगा तब हम उसको बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जब वो चेंजेस इन वैल्यू बताएगा तब हम उसको बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर। यस, रिमेम्बरिंग दीज थिंग्स। ओके, नाउ उसके बाद हम लोगों ने ये चीज देखी थी, टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर के बाद वी हैड सीन सर्टेन नोटेशंस। ओके, नोटेशंस डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं। वी यूज फॉर बेस ईयर प्राइस वी यूज P0, फॉर करंट ईयर प्राइस वी यूज P1, फॉर बेस ईयर क्वांटिटी वी यूज Q0, फॉर करंट ईयर क्वांटिटी वी यूज Q1, for base year value we use V0, and for current year value we use V1. ओके, एंड देन वैल्यू के बारे में मैंने ये चीज बताई थी, दैट इज इट इज सेम एज योर एक्सपेंडिचर एंड इट इज व्हाट P0 Q0। V1 के बारे में हमने एक चीज बताई थी, इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर बट इट इज एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर, वैल्यू इन करंट ईयर, देयरफॉर इट इज व्हाट P1 Q1, प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज द वैल्यू। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हाँ, हम लोगों ने फिर दो तरीके के मेथड देखे थे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में बहुत आसान चीजें थी, हम लोगों ने इसके काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, बहुत सारा होमवर्क भी किया है तुम लोगों ने। ओके, सो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम लोगों ने 3 तरीके के इंडेक्स नंबर्स देखे थे। इस वैल्यू भी था इसमें, शायद से वैल्यू नहीं लिया था ना उसने, उन्होंने फिर लिया था, वैल्यू नहीं लिया था शायद उन्होंने। यस, सो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में सिंपल, हाँ सिंपल ही है ना पहले, यस मुझे लगा वेटेड है। सिंपल एग्रीगेट मेथड में हमने पहले देखा था प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, यस, करंट ईयर के प्राइसेस का एडिशन अपॉन बेस ईयर के प्राइसेस का एडिशन इनटू 100, ये करते हैं हम लोग सिंपल एग्रीगेट मेथड में। इफ इट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, if it is quantity index number, what we do, current year के quantities का addition upon base year के quantities का addition into 100. Getting my point? So simple aggregate method was easy. ओके, सो इसमें हम लोग फिर सिंपल एग्रीगेट मेथड के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आई एम जस्ट रिवाइजिंग दी थिंग्स एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन ईच टाइप। डोंट वरी, हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने मेथड 2 देखा था। मेथड 2 में मैंने तुम लोगों को वेट्स के बारे में बताया था। वेट्स के बारे में मैंने क्या बताया था वेटेड एग्रीगेट मेथड में? यस, मैंने ये चीज बताई थी वेट्स के बारे में। वेट बेसिकली होता क्या है? वेट इज इम्पोर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर, है ना। मतलब जैसे कि मैंने तुम लोगों को V10 उसका रीजन दिया था, फिर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने तुम लोगों को रूरल एरियाज में लैपटॉप का परचेस एंड अपने सिटी एरिया में लैपटॉप का परचेस डिफर करेगा। लैपटॉप का इंपॉर्टेंस सिटी एरिया में ज्यादा है, रूरल एरियाज में कम है। ओके, सो ये सब चीजें जो है एरिया या फिर डिपेंडिंग ऑन दी लाइक एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अपना जो इम्पोर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर है वो चेंज होते जाता है। एंड वेट के लिए मैंने एक अच्छा एग्जांपल भी तुम लोगों को दिया था इन केस ऑफ निफ्टी 50। मैंने तुम लोगों को इंडेक्स फंड्स के बारे में पढ़ने को बोला था। इंडेक्स फंड्स में वो क्या करते हैं, हमारे पैसे लेते हैं और ब्लाइंडली उनको, जो ब्लाइंडली एज इन उनके इंडेक्स फंड का जो भी वेटेज रहेगा उस हिसाब से वो लोग अपना पैसा निफ्टी 50 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, टॉप 50 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो ये जो वेटेज है यहाँ पे भी तुम लोगों को देखने को मिलेगा। वेट मतलब किस कंपनी का कितना इंपॉर्टेंस है ना, दैट इज द वेट। सो उस तरीके से अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी इन्फोसिस आती है निफ्टी 50 में, फिर अपना ये रिलायंस आता है निफ्टी 50 में। तो फिर ये दो कंपनीज का जो इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से मान के चलो 100 रुपए मैंने लगाए, तो 100 रुपए तो बहुत कम हो गए 50 कंपनीज के लिए, बट मान के चलो उसमें से 10 रुपए रिलायंस में, उसमें से 15 रुपए इन्फी में। तो फिर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? डिपेंडिंग ऑन देयर वेट्स, डिपेंडिंग ऑन देयर इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर्स। ओके, सो ये सब चीजें जो है वो इंडेक्स फंड्स में कंसिडर की जाती है। सो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हम लोगों ने वेट का मीनिंग समझा था।
नाउ लेट्स मूव टू उसके फॉर्मूला। वेटेड एग्रीगेट मेथड में हमने सबसे पहले देखा था इसको, कौन है वो? हाँ, ये तो वेरी बेसिक फॉर्मूला है। P01 is the representation for index number, okay? 1 for current year, 0 for base year. हम लोग क्या देखते थे? P1 into W, P0 into W into 100. ये W क्या बताता है? उस पर्टिकुलर, उस रिस्पेक्टिव कमोडिटी का वेट, है ना? उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करो प्राइस से, ये वो बताता है। ओके, सो वेटेड एग्रीगेट मेथड टेल्स अस टू कंसिडर वेट्स फॉर रिस्पेक्टिव कमोडिटीज। फिर हम लोगों ने अलग अलग प्राइस इंडेक्स नंबर्स देखे थे। पहला देखा था हम लोगों ने लास्पेस प्राइस इंडेक्स नंबर। ये बंदा क्या लेता है वेट को? Yes, what is weight for this particular person? What he has considered the weight for the commodity as base year ka quantity. Yes, base year ka quantity is the weight for last pairs price index number. So it is what denoted by P01 into bracket L, and it is equal to what? Summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100. So weight क्या है यहाँ पे? Weight is what? Q0. Weight is what? Q0. So उस particular commodity का weight जो है that is Q0 Q0. Okay, so last pair ने किसको weight लिया? Last pair ने weight लिया Q0 को। ओके, तुम्हारा पेपर थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहेगा बिकॉज आई वांट टू टेस्ट योर कंसेप्ट्स। बिकॉज सी कैलकुलेशन पार्ट तो तुम कर ही लेते हो यार, कैलकुलेशन पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये चैप्टर अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो बहुत आसान है। ओके, सो आई विल जस्ट मतलब थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी उसको, ठीक है, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी। सो थोड़ा सा एक लॉजिकल पेपर काइंड ऑफ हो सकता है, तो मतलब सॉल्विंग भी रहेगा, बात ऐसे नहीं कि सॉल्विंग नहीं रहेगा, बट थोड़ा सा एक काइंड ऑफ लॉजिकल चीजें भी मैं पूछूंगी। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। यानी जो चीजें तुम लोगों को क्लास में काफी हद तक ऐसे थोड़े थोड़े करके एक्सप्लेन की है, इसका यूज क्या है, वो कैसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, फिर जैसे मान के चलो वो 100 बेस ईयर लेते हैं, इसलिए हम ये 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इंडेक्स नंबर इज 120 मींस परसेंटेज इंक्रीज कितना है प्राइस में? 20% का इंक्रीज है। ये सब चीजें मैंने जो तुम लोगों को बताई थी, ओके, लिसन टू द लेक्चर्स एंड ऑल, तुम लोगों को काफी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, सो इस टाइप का थोड़ा सा पेपर रहेगा, थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्चुअल। ओके, एंड देन सॉल्विंग का पेपर तो यार होने ही वाला है 30 मार्क्स का, वो तो मैं ले लूंगी, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ पार्शियल इंडेक्स नंबर नेक्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं P01 इंटू ब्रैकेट P। ये लेता है बेस ईयर का क्वांटिटी एज वेट। इसमें वेट क्या है? बेस ईयर क्वांटिटी। और इसमें वेट क्या है? करंट ईयर क्वांटिटी। ओके, सो समेशन P1 Q1। हाँ, यस, परसेंटेज होने के लिए करते हैं, बट उसका इनडायरेक्ट मीनिंग, यस, किसी ने तो डाउट पूछा कि इंटू 100 तो हम परसेंटेज के लिए करते हैं। यस, डेफिनेटली परसेंटेज के लिए करते हैं, बट इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंसिडरिंग इट एज बेस ईयर। जैसे कि मान के चलो कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस अभी है मान के चलो 40 और उसका प्राइस हो गया 4 साल बाद 20, तो ये क्या हो गया? 20/14 हो गया। ओके, ये इंक्रीज हो गया, ये मुझे बताएगा कि कितना इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर मैं उसको 100 के साथ रिस्पेक्ट करूँ, 100 के साथ कंसिडर करूंगी, तो वो मुझे परसेंटेज जरूर देगा। व्हाट डज दैट मीन? ये 100 किया मतलब क्या किया मैंने? बेस ईयर का प्राइस 100 कर दिया। परसेंटेज तो मिल ही जाएगा, डेफिनेटली परसेंटेज ही मिलता है, बट परसेंटेज क्यों मिलता है? बिकॉज मैं बेस ईयर का प्राइस क्या करती हूँ? 100 करती हूँ, इसलिए दोनों इंटर रिलेटेड है। ओके, बेस ईयर का प्राइस 100 करने की वजह से हमें परसेंट मिला है। ओके, समझ में आ रही है बात? सो इफ इट इज परसेंटेज इंडेक्स नंबर, दैट मीन्स we have made the base price as 100. okay, so P1 Q0। अब यहाँ पे वेट लेंगे करंट ईयर का क्वांटिटी P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100।
ओके यहाँ पे क्वांटिटी वेट जो है वो क्या है, करंट ईयर का क्वांटिटी, पार्शियल इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने देखा था। डॉर्बिश बोले याद रखने का नहीं, डॉर्बिश बोले नहीं था, वो मार्शल एजवर्थ था, सॉरी। डॉर्बिश बोले याद रखने का तरीका जो है, दैट इज जस्ट एन एवरेज ऑफ एल एंड पी। डॉर्बिश बोले प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, डॉर्बिश बोले प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बताता है? यस, यू विल हैव टू जस्ट take L and P and take its average. So summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 plus summation P1 Q1 upon summation P0 Q1 upon 2 into 100. इस 100 को यहाँ पे ले लो, इस 100 को यहाँ पे ले लो, इस 100 को ले सकते हैं, ये ब्रैकेट है बॉस, 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 100 को अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये L मिल जाएगा एंड ये P मिल जाएगा। ओके, सो डॉर्बिश बोलेगा इंडेक्स नंबर, उसके लिए शॉर्टकट क्या है? उसके लिए शॉर्टकट क्या है? L प्लस P बाय 2। इनडायरेक्टली हम वही करते हैं। ओके, इनडायरेक्टली हम पहले L फाइंड आउट करेंगे, फिर P फाइंड आउट करेंगे एंड देन उनका एवरेज ले लेंगे। दैट विल गिव मी डॉर्बिश बोलेस प्राइस इंडेक्स नंबर। अब चलते हैं फिशर्स, अब चलते हैं फिशर्स पे। याद आ रहा है ना सबको? यस, सारी चीजें याद होनी चाहिए। फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ओके, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ओके, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज व्हाट? अंडर रूट एल को रखो इंटू एल एंड पी, दोनों को रख दिया मैंने, एंड इंटू 100 स्क्वायर रूट के बाहर। इस 100 को अंदर लेना है तो वो 2 बार अंदर आएगा ना, एक बार, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर आया है तो अंदर जाते वक्त तो 2 बार जाएगा अंदर, है ना? तो कैसे होगा फिर? I will write it 2 times. I will get the relation between L and P. So ये क्या हो गया फिर? Yes, how much? What is this? This is L. What is this? This is P. याद आ रहा है सब कुछ? So इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं arithmetic mean of L and P. Yes, किसी ने तो मुझे डाउट पूछा था वो arithmetic mean और geometric mean का, हम लोगों ने एक बार explain भी, मतलब डिस्कशन किया था मैंने हमेशा, AM is always greater than GM. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? यस, यहाँ पे क्या होगा? This is what? Geometric mean. This is geometric mean of L and P, and this is arithmetic mean of L and P. So Fisher's index number हुआ, डॉर्बिश बोले इंडेक्स नंबर, और मार्शल एजवर्थ बाकी है, गेस। यस, मार्शल एजवर्थ बाकी है। इसमें भी मैंने तरीका बताया था तुम लोगों को याद रखने का। Marshall Edgeworth's price index number क्या बताया था मैंने? Yes, if you remember, I had told you add the numerators of L and P. L and P के numerators add करो, ये हो गए L and P के numerators. L and P के denominators add करो, ये हो गए L and P के denominators. Just wait. Okay, P0 Q0 plus summation P0 yes, P0 Q1, sorry, ऐसे करते हैं, and into 100 this will give me what? Marshall Edgeworth price index number represented by ME. okay, तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने? L and P के न्यूमरेटर्स ऐड करो एंड L and P के डिनोमिनेटर्स ऐड करो, यू विल गेट दी इंडेक्स नंबर फॉर मार्शल एजवर्थ। वॉल्श भी था हमारे पास, यस, वॉल्श भी था, रूट ऑफ Q1 Q0 याद आ रहा है सब? यस, इसमें बहुत कैलकुलेशंस थे। यस, वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? W. ओके, सो क्या होगा फिर? समेशन P1 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 अपॉन समेशन P0 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1। तो इसने क्या लिया है? वेट,
इसने वेट कंसिडर किया है अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 इज दी वेट फॉर Walsh price index number. Okay, note it down in your notebook. See, रिविजन हो जाएगा, मतलब रिविजन एज इन तुम्हारे सामने रहेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है एक शॉर्ट में. Okay, so note it down. Just हमें पता है तब भी नोट करो. Writing is very nice thing to remember the. I mean, writing is very nice option for remembering the things. Okay, so फॉर्मूला रटना है तो लिखो, जितनी बार लिखोगे ना उतना अच्छे से रट जाएंगे फॉर्मूले. वैसे तो अभी इतनी प्रैक्टिस की है तो याद ही रहे होंगे मेरे हिसाब से. इसमें कुछ रटने के लिए तुम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है. वॉल्स का क्वेश्चन मैंने रखा भी ना क्वेश्चन पेपर में, तो भी मैं थोड़ा नॉर्मल अच्छे नंबर्स लूंगी जिसका स्क्वायर रूट जल्दी निकलता है. डोंट वरी. ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बातें की थी. कॉस्ट ऑफ लिविंग में मैंने तुम लोगों को बताया था कि काफी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. बेस ईयर चूज करना, फिर कहाँ से वो कमोडिटीज लाई करती है, कहाँ पे कमोडिटी होती है. लाइक तुम लोग रूरल एरियाज के लिए करते हो या फिर सिटी के लिए करते हो, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. फिर हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी जो हमारे सिलेबस में नहीं है, विच इज होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर. इफ यू रिमेम्बर, ओके, गो थ्रू द वीडियोज, वी विल गेट टू नो लाइक हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी. तो वो WPI के बारे में हमने काफी डिस्कशंस किए थे. हमने बोला था कि WPI पहले आया था, बाद में CPI आया. ओके, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी. फिर उसके बाद यस, चॉइस ऑफ वेट्स के बारे में बात की थी. एंड इनफैक्ट चॉइस ऑफ वेट्स मतलब वो ही फिर से आता है कि तुम कौन से एरिया में कौन से कमोडिटी की बात कर रहे हो. डिपेंडिंग ऑन दैट योर चॉइस ऑफ वेट्स आएगा. उसके बाद हम लोगों ने दो तरीके के मेथड्स देखे थे. एक था अपना फैमिली बजट मेथड एंड एक दूसरा था विच इज aggregative expenditure method. Okay, so aggregative expenditure method and family budget method actually one and the same, just the representation of formula is different. Okay, so एक बार लिस्ट आउट करते हैं CLI के बारे में. CLI के बारे में हम लोगों ने जो जो देखा था उसको एक बार लिस्ट आउट करते हैं. यस, सिंपल और सिंपल नहीं था वो, वेटेड एग्रीगेट मेथड भी बोल सकते हैं. वेटेड एग्रीगेट, हाँ बोल सकते हैं, वेटेड एग्रीगेट मेथड. ओके, वेटेड फॉर CLI. ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी इनटू उसका एक्सपेंडिचर. आई मीन considering the quantities of base year as a weight, we go for CLI equal to P1 Q0 into summation P0 Q0 into 100. मतलब हम लोगों ने क्या किया बेसिकली यहाँ पे, यस, सेम क्वांटिटी जो पहले साल मतलब पिछले साल में जो इम्पोर्टेंट थी, पिछले साल में इंपॉर्टेंस कैसे समझ में आया, उसकी डिमांड कितनी है उससे समझ में आया, है ना. तो ये Q0 क्या बताता है बेसिकली, क्वांटिटी मतलब एक टाइप का डिमांड ही बताता है वो. ओके, सो पिछले साल में जो मेरा क्वांटिटी कंजम्पशन था उसको मैंने यहाँ पे वेट कंसिडर किया है फॉर फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. तो फिर सेम एज योर दिस लास्ट पेज के जैसे दिख रहा है ना वो. यस, लास्ट पेज के जैसे दिख रहा है वो. ओके, सो जनरली लास्ट पेज इंडेक्स नंबर इज कंसिडर्ड एज CLI ओनली. ओके, सो अब चलते हैं फैमिली बजट मेथड. ये था अपना वेटेड एग्रीगेट मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, अब चलते हैं फैमिली बजट मेथड. फैमिली बजट मेथड में क्या है, let's check it out.
फैमिली बजट मेथड में हम लोगों को प्राइस रिलेटिव दिया रहता है। प्राइस रिलेटिव मतलब आई इज व्हाट, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। मतलब सपोज तुम्हारे पास व्हीट है, फिर उसके पास मान के चलो राइस है, इसका प्राइस मान के चलो 10 है, 10 मे बी 20 रुपीज पर केजी, ऐसा कुछ नॉर्मल, अभी मुझे नहीं पता रेट क्या चल रहा है, रिलेट मत करो उसके साथ। सपोज ये 30 रुपीज पर केजी है और बाद में ये हो गया 25, ये हो गया 35, तो उस केस में क्या होगा, yes we find out the price relatives for each commodity, like for wheat के लिए price relative होगा 25/20 into 100, for rice के लिए अपना relative price relative होगा 35/30 into 100। तो ये price relatives हम लोग find out करते हैं for each commodity, for each commodity। okay, so प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो ये इसको हम बोलेंगे प्राइस रिलेटिव्स, एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट से। ओके, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट अपॉन, हर एक कमोडिटी का होगा इसलिए समेशन, हर एक कमोडिटी का करेंगे ना ऐसा, आई डब्ल्यू, व्हीट का करेंगे, राइस का करेंगे, तो ये आई फाइंड आउट किया, फिर आई डब्ल्यू फाइंड आउट किया, तो व्हीट का आएगा, राइस का आएगा, तो ये सब के हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ओके, सो डब्ल्यू इज व्हाट, व्हीट। तो दिस इज व्हाट योर CLI बाय फैमिली बजट मेथड। ओके, अब वेट जो है जनरली फैमिली बजट मेथड में वेट क्या लिया जाता है, यस डू रिमेम्बर, वेट इज व्हाट, बेस ईयर का एक्सपेंडिचर। जनरली वेट इज, जनरली मतलब वेट इज बेसिकली बेस ईयर का एक्सपेंडिचर, बेस ईयर एक्सपेंडिचर। इसको एक्सपेंडिचर में कैसे विजुअलाइज करना है पता है ना, यस मेरे पास मान के चलो 3 पेन है और एक पेन का प्राइस है 5 रुपए, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, मतलब मुझे 3 पेन परचेस करने हैं और मेरे पास है सॉरी 5 पेन परचेस करने हैं और एक पेन का प्राइस है 3 रुपीज, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 5 into 3, मतलब क्या किया मैंने, प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो प्राइस इंटू क्वांटिटी तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट बेस ईयर का एक्सपेंडिचर। ओके, so W is base year expenditure. If I substitute it here, what it would be? CLI is equal to I into I मतलब क्या होता है, प्राइस रिलेटिव ना, प्राइस रिलेटिव P1 upon P0 into 100, ये प्राइस रिलेटिव हो गया, ये वेट हो गया P0 Q0 अपॉन ये वेट हो गया P0 Q0। क्या मिला, यस मैजिकल एक्सप्रेशन मिला। ओके, अरे 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 एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ ये कैंसिल नहीं करना चाहिए था। ओके, Q0 अपॉन P0 Q0 एंड ये इंटू 100। हम यहाँ पे इंटू 100 क्यों नहीं करते, बिकॉज ये I जो हम लोगों ने लिया है उसमें ऑलरेडी 100 इंक्लूडेड है, अगर फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 10,000 हो जाएगा, फिर इट वोंट बी अ परसेंटेज। ओके, सो इस I में हमने ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई किया है, सो यहाँ पे फिर से एक्स्ट्रा 100 लगाने की कोई जरूरत नहीं। 11:30 AM you will get student email ID. मिल गए ना, अब तो गया मिल। कौन बातें कर रहा है इतना, यस ओके, so this is the way to go for family budget method. So उसके बाद हम लोगों ने एक चीज देखी थी, रियल वेजेस एंड दिस थिंग, एक्चुअल वेजेस, रियल इनकम एंड ऑल। ओके, उसका तो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, वो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने तुम लोगों को इसका सिंपल वे भी बताया कैसे सॉल्व करते हैं सिंपल वे से, एंड एक ऐसे ये फॉर्मूला वाला वे भी बताया था, इफ यू रिमेम्बर। ओके, सो सिंपल वे भी बताया था और फॉर्मूला वे भी बताया था, लेकिन हमें फॉर्मूला वाला मेथड करना पड़ेगा। ओके, यस, रियल वेजेस मतलब क्या बताया था मैंने, यस रियल वेजेस मतलब क्या बताया था, इफ आई टेक बेस ईयर एज 100, इफ आई टेक बेस ईयर एज 100, तो व्हाट वुड बी माय इनकम इन करंट ईयर, यस दैट इज माय रियल वेज और रियल इनकम। इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 को ही एनालाइज करेंगे हम लोग पहले, ये हम उल्टा चलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग से ऊपर ऊपर चलेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग से ऊपर ऊपर चलेंगे। यस, तो फिर cost of living index numbers for the years 2000 and 2005.
ओके, ये क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स फॉर द ईयर्स 2000 एंड 2005 कितने कितने दिए हुए हैं? 120 एंड 200. उनके इफ पर्सन हैज मंथली अर्निंग्स ऑफ रुपीज 10,800 इन दिस थिंग, ये इंडेक्स नंबर्स है और ये मंथली अर्निंग्स है. कितना है? 10,800. What would be his monthly earning in 2005? सीधा सीधा आंसर आ जाता है यूनिटरी मेथड से, बट उन लोगों ने वैसे नहीं किया है. उन लोगों ने क्या किया है? देखो, हर एक केस में उन्होंने रियल वेजेस फाइंड आउट किए हैं. रियल वेजेस मतलब यस 2000 है, इसमें 120 इंडेक्स नंबर. उन्होंने ऐसा एक ईयर कंसिडर किया है जो उन्हें पता नहीं है कौन सा ईयर है. उन्होंने उसको बेस ईयर लिया है एंड उसका इंडेक्स नंबर 100 लिया है. उसका इंडेक्स नंबर क्या लिया है? 100 लिया है. एंड उस साल में जो भी वेज होगा वो मेरा रियल वेज होगा. तो मतलब ये जो अपना 120 में कितना है, 120 इंडेक्स नंबर के केस में कितना है, तो ये उन्होंने फाइंड आउट किया है और उसको उन्होंने नाम दिया है रियल इनकम. ओके, उसको उन्होंने नाम दिया है रियल इनकम. तो फिर अभी हम लोग देखते हैं, रियल इनकम फाइंड आउट करते हैं. ओके, पहला केस देखो, तुम लोगों को समझ में नहीं आया ना कि फॉर्मूला क्या है, रियल इनकम इक्वल टू इनकम अपॉन CLI इंटू 100. तो सीधा सीधा क्या करो, इसको 120 ले लो, कोई तो भी एक इमेजिनरी बेस ईयर है जहां पे इंडेक्स नंबर 100 है. अब बनाओ तुम्हारा यूनिटरी मेथड का एक्सप्रेशन. ये है तुम्हारा इनकम, ये है तुम्हारा CLI, ये है तुम्हारा रियल इनकम. अब बनाओ एक्सप्रेशन. कैसे बनेगा एक्सप्रेशन देखते हैं अभी. रियल इनकम इज इक्वल टू इनकम इंटू 100, सही है ना, अपॉन CLI. बन गया फॉर्मूला. समझ में आ रही है बात. मैंने क्या किया, 2000 को करंट लिया और कोई तो भी एक इमेजिनरी बेस ईयर है जो मुझे पता नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि उसमें CLI कितना है, 100 है. ओके, उन्होंने इस तरीके से किया है, जबकि इसकी जरूरत भी नहीं थी. मैंने लास्ट टाइम बताया भी था. तुम लोग ये थोड़ा वीडियोस रेफर करो, तुम लोगों को याद आ जाएगा. तो इनकम कितना है अभी? 10,800. फॉर विच ईयर वी आर कंसिडरिंग? फॉर 2000 एज करंट ईयर. सिंपल चीज को डिफिकल्ट करके रखा है और कुछ नहीं. फॉर 2000 एज करंट ईयर. ओके, फॉर 2000 एज करंट ईयर. तो इन रियल इनकम हमें फाइंड आउट करना है. व्हाट इज इनकम? व्हाट इज इनकम? 10,800. CLI 120. दिस इज 100. तो कितना आ गया फिर ये? 12 9 108, 9,000 आई एम गेटिंग. इसका मतलब मेरे पास ये चीज मिल गई है. अभी क्या मिला है हमें? ये चीज मिल गया है. ओके, सो I'll put it with different color. This is the picture which I will put in front of me while rough work. तो अभी नया पिक्चर मेरे सामने है. अभी मुझे क्या कंसिडर करना है? अभी मुझे कंसिडर करना है 2005. ओके, कंसिडर 2005 एज करंट ईयर. तो फिर से 2005 करंट ईयर है, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे CLI मुझे पता है 200 है, और यहाँ पे 2000 मुझे नहीं लेना है, मुझे ये बेस ईयर लेना है जो एक हाइपोथेटिकल ईयर है. मतलब हाइपोथेटिकल एज इन वी हैव अज्यूम दैट इन दैट ईयर वी आर हैविंग CLI एज 100. एंड इसका रियल इनकम मुझे पता है कितना. अभी मिला हमें, कितना मिला हमें? 9,000 मिला है. Okay, so how can you frame this? This is what real income. This is what income. This is what CLI. Okay, now frame the formula. So क्या होगा फिर? Real income is equal to income into 100
अपॉन CLI. Okay, so I know real income कितना है 9,000. इनकम हमें फाइंड आउट करना है. CLI कितना है? CLI is how much? 2,000. तो ये गया और ये भी गया. Make it here, bring it here for multiplication. So इतना मगजमारी करना पड़ा, जरूरत भी नहीं थी. ओके, हम सीधा सीधा फाइंड आउट कर सकते थे ना, लेकिन टेक्स्ट बुक का मेथड है भाई, फॉलो तो करना पड़ेगा. यहीं पे हमारा आंसर आ रहा था. अगर तुम लोग इस सिनेरियो को पिक्चर में लेते हो, 2000, 2005, 2000, 2005, 100, 200 है ना, और यहाँ पे इनकम था 108, ऐसे ही था ना कुछ, 120 था, सॉरी 120 था, 10800, एंड यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना था. सीधा सीधा यहीं पे मिल रहा था ना, देखो 200 into 1080 डिवाइडेड बाय 120. बट ऑप्शन नहीं है बॉस. 0 गया, कितना आया ये 18,000 बाय. कितने स्टेप में आया आंसर, इसलिए ये मेथड मैं फाउंडेशन में बताती हूँ जनरली. अब तक तो ये चैप्टर था भी नहीं 12th में, लेकिन 11th में ये चैप्टर था तो हम लोग यही मेथड से करते थे. लेकिन ये मेथड भी मैं स्टूडेंट्स को बता के रखती थी सो दैट उनको क्लैरिटी मिल जाए. ओके, सो दिस इज this upper portion you will have to refer, not this one. This is shortcut way. They won't give you the marks for this type of thing. Okay, so better way you follow above thing. So this is the way we had found that real income and actual income. अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मिसलेनियस से करते हैं, so मिक्स्ड ना, तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा जाता है. तो CLI का क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस थिंग. X वाला क्वेश्चन करते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर. ओके, ये 4th क्वेश्चन करते हैं. फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, समेशन करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी एक ही क्वेश्चन में. क्वेश्चन 4 फ्रॉम मिसलेनियस. कमोडिटी दी हुई है P, Q, R, S and T. बेस ईयर प्राइसेस दी हुई है. P0 लिया मैंने, कितना है 20, 12, 22, 23, 13. करंट ईयर प्राइसेस दिए हुए हैं P1 30, X 38, 51, 19. और एक चीज दी हुई है, प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. प्राइस using is equal to what? 200 is equal to 200. तो प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड इज व्हाट? 200. तो अभी हम लोग चलते हैं धीरे धीरे सिंपल एग्रीगेट मेथड का, उससे सिंपल एग्रीगेट मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे. सो प्राइस बाय क्या होता है? Any doubt in this? Easy. ओके, अब यहाँ पे हम लोग समेशन कर लेते हैं फिर. यस, समेशन कर लेंगे. कितना आया ये? 30, 30, 60, 60 एंड 50 कितना हो गया? 110, 110 एंड 10 कितना हो गया? 120, 120 एंड 18, 120 एंड 18, 130, 130 प्लस x. ये क्या मिला हमें? समेशन P1 मिला. समेशन P0 देखते हैं कितना है ये? 20 and 10 30, 30 and 20 50, 50 and 20 70, 70 and 10 80,
80 एंड ये कितना हो गया 84, 84 एंड 690. Any doubt to anyone? Yes. 138 हाँ बोला शायद से मैंने 130 138 लिखा नहीं चाहिए. हाँ ये सही है. 90 इसमें कुछ प्रॉब्लम है? यस इसमें कुछ प्रॉब्लम है. 90 में 20 10 30 30 एंड दिस 30 सही है ना? ओके करेक्ट है. कितना दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर हम लोगों को? 200. हाउ मच इज दिस P1? 138 प्लस x. ये कितना है? 90. 200 से ही पता चलता है क्या हो रहा है. प्राइसेस दुगनी हो रही है ना. प्राइस इंडेक्स नंबर 200 इसका मतलब क्या हो रहा है? प्राइसेस दुगनी हो रही है. सीधी सी बात है. शॉर्टकट वे क्या है इसका? यस ये ट्वाइस होगा. 130 प्लस x इज ट्वाइस ऑफ 90. शॉर्टकट वे. विजुअलाइजेशन ये विजुअलाइजेशन चाहिए दिमाग में. मेथड सॉल्व करना और अच्छा समेशन P0 100 आ रहा है क्या? वही मैंने बोला एक बार चेक करो यार. 30 and 20 50 and this is 20 70 80 and 484 84 and 6 सही तो है रे. सही तो है. 20 एक बार चेक कर लेते तब भी ठीक है. कोई बात नहीं हो सकती है गलती. आई थिंक इट्स करेक्ट. करेक्ट है. ओके तो यस मैंने क्या विजुअलाइजेशन बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो क्या बताया मैंने. ये जो है प्राइस इंडेक्स नंबर जो है ये क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है. मतलब प्राइसेस जो है वो ट्वाइस हो रही है. प्राइसेस जो है वो ट्वाइस हो रही है ना. मतलब करंट ईयर में प्राइसेस ट्वाइस हो रही है एज कंपेयर टू बेस ईयर. तो ये क्या किया मैंने? फिर इसको ट्वाइस किया. दिस समेशन P1 is what? Twice of summation P0. This visualization is needed. ओके तो कितना आता है फिर देखते हैं. फिर लेट्स सी. आया देखो पूरा कैंसलेशन करके भी मुझे वही एक्सप्रेशन मिलेगा. 2 into 90 equal to 138 plus x. Don't do this in exam but okay I'm just telling you. So ये हो गया 180 x. कितना आता है ये? 42 ना. 42 is your x. समझ में आ रही है बात? ओके सो 42 इज ए अपूर्वा. x कितना डेंजर आया तेरा. इतना खतरनाक x आता है क्या? किया क्या है तूने एग्जैक्टली? ओके सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. ओके अब करते हैं कोई और क्वेश्चन. डॉर्बिश बोले का क्वेश्चन करते हैं सो दैट उसमें लास्ट प्राइस भी कवर हो जाएगा पार्शियस भी कवर हो जाएगा. ओके डॉर्बिश बोले का कर लेते हैं. एंड सेम वैल्यूज के लिए हम लोग मार्शल एजवर्थ भी कर लेंगे. ओके इजी है. तो यही एक एग्जांपल हम लोग वो सारे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. इजी. ओके so calculate Darvish बोले प्राइस इंडेक्स नंबर. ओके लेकिन हम लोग कर लेंगे सब कुछ फाइंड आउट कर लेते इसी क्वेश्चन के लिए. एक प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ नहीं. कमोडिटी दिया हुआ है 1 2 3. P0 दिया हुआ है 8 9 10. Q0 दिया हुआ है 30 25 15. P1 दिया हुआ है 11 12 13. Q1 दिया हुआ है 28 22 11. ओके तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे L. पहले सबसे पहले L फाइंड आउट करते हैं. ओके डॉर्बिश बोले आ जाएगा अपने आप वो एवरेज लेंगे.
ओके, एवरेज करके वो आ जाएगा। तो अभी चलते हैं फिर, पहले लास्ट पेयर्स। ओके, सो लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर के लिए क्या क्या चाहिए हमें, देखो जरा ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। समेशन P0 Q1 सॉरी Q0 समेशन, अरे यार, P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100। सो P1 Q0 चाहिए हमें, P1 Q0 चाहिए एंड P0 Q0 चाहिए। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इट। क्या होगा P1 Q0, कितना हो गया ये? 6 24 एंड 6 30, कितना हो गया? 15 3 45, 15 1 15 and 4 19। P0 Q0 कितना आता है? 240। 25 9 से कितना होता है? 225, 15 150। ओके, तो कितना आएगा फिर ये समीशन? P1 Q0 कितना आएगा? लेट्स चेक इट आउट। दिस इज व्हाट 5, एक मिनट, आई विल जस्ट चेंज द थिकनेस। Am I audible? Am I audible now? Okay. So this is your last best index number. So कितना आया फिर ये? Yes, 5 आया, 9 and 3 12, 1. This is how much? 6 into 8 825. Am I right? Yes. कुछ गलती हो तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P0 Q0, how much is this? 5 6 and 5 11, 4 and 2 6 615. Okay. For time being, I'm using calculators. Okay, calculator, I mean, you don't use in the exam. Be honest to yourself. 825 divided by 615 equal to into 100. So it comes out to be 134.15. Okay. कितना परसेंट इंक्रीज है फिर प्राइसेस में? कितना परसेंट इंक्रीज है? 34.15% इंक्रीज है। ओके, 34.15% इंक्रीज है। अब फाइंड आउट करेंगे पाशेस इंडेक्स नंबर। क्या है पाशेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला? P1 Q1 अपॉन P0 Q1 into 100। दिस इज पाशेस इंडेक्स नंबर। ओके, और पाशेस इंडेक्स नंबर के लिए क्या क्या चाहिए? P1 Q1 चाहिए हम लोगों को। P1 Q1 we need, then P0 Q1 we need, P0 Q1 we need। तो P1 Q1 कितना है? 28 into 11 8 से 88, 11 2 से 22 22 and 8 308, 11 2 12 2 से 24, 12 2 से 24 into 26, 11 3 से 33, 11 1 से 11 and 3 143। P0 Q1, P0 Q1, 8 8 से 64, 8 8 से 64, 8 2 से 16 and 6 22, then 9 2 से 18, 9 2 से 18 and 1 19, 10, या इतना। ओके, सो अब कितना हो गया फिर ये? 8 and 4 12, 12 and 3 15, this is 11, 3 and 2 5 and 1 6 and 1 7. How much is this? 12, 2 and 2 4, 4 and 9 13. Is how much? 532. Okay, so P1 Q1 is how much? 715. P0 Q1 is how much? 532. 715 upon कितना आता है? Let's check it out.
715 divided by 532. Again 134.398. So I can make it 134.4 I can make it. Okay, because see, देखो इस 8 की वजह से इसको अगर मैंने अप्रॉक्स किया तो ये तो 10 हो जाएगा, इस वजह से फिर ये 4 हो जाएगा, है ना? तो मतलब either you keep it as 134.39 or make it as 134.4, no worries. उस 8 की वजह से इतना अप्रोक्सीमेट करना पड़ रहा है हम लोगों को. ओके, सो कितना इंक्रीज है फिर प्राइस में? 34.4 का इंक्रीज है. ओके, अब हम लोग डॉर्बिश बोले फाइंड आउट कर सकते हैं. डॉर्बिश बोले यस, सो P01 डॉर्बिश बोले इस प्राइस इंडेक्स नंबर इज व्हाट? L plus P/2. कितना है फिर वो? 134.15 plus 134.4 upon 2. कितना हो गया फिर ये? Yes, how much is this? This is coming out to be what? 55862 upon 2. 134.275. Okay, 275. Now this was डॉर्बिश बोले. अब फिशर तो खतरनाक है यार. ये स्क्वायर रूट निकालना पड़ता हम लोगों को, है ना? याद आ रहा है वो मेथड मैंने बताया था? ओके, याद है कुछ? वो मेथड मैंने बताया था 134.15 इंटू 134.4. अगर नहीं याद है तो प्लीज वो अभी पूरा मेथड एक्सप्लेन करना तो फिजिबल नहीं है, बट यू कैन रेफर टू द वीडियोस. ओके, जिसमें मैंने एक्चुअली उसका हेडिंग भी ऐसे ही दिया है, टू फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट फॉर वॉल्श इंडेक्स नंबर. वो वीडियो देखो. ओके, स्क्वायर रूट का, उसमें मैंने हर तरीके के स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने को सिखाया है, तो दैट यू शुड नो. ये कितना हो जाएगा फिर? 134.15 इंटू 134.4 is this. इसका लेंगे स्क्वायर रूट. इट कम्स आउट टू बी 134.27. कितना अप्रोक्स मतलब कितना सिमिलर आता है देखो ये और ये. वही तो, जो दोनों को यूज करके फाइंड आउट करते हैं इंडेक्स नंबर्स को, उनके नंबर्स बहुत क्लोज रहते हैं. ये कैसे इंडिविजुअल है ना, इनका अलग अलग लॉजिक है, इसलिए इनके इंडेक्स नंबर्स इतने क्लोज नहीं है. लेकिन ये दोनों का लॉजिक सेम है कि दोनों को मिक्स करो, इसलिए उनके इंडेक्स नंबर्स बहुत आसपास आते हैं. ओके, अब मार्शल एजवर्थ की तरफ चलते हैं. मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर, न्यूमरेटर्स को ऐड करना है ना हम लोगों को, इनके न्यूमरेटर्स को 825 715. ऑब्वियसली पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. फॉर्मूला इज मस्ट. मतलब अभी तो चलो एमसीक्यू है, बट 30 मार्क्स के टेस्ट के लिए मैं बता रही हूँ. फॉर्मूला इज मस्ट. फॉर्मूला नहीं लिखा है, सीधा सब्स्टिट्यूट किया है. आई एम गोइंग टू कट द हाफ और मे बी 1 मार्क, डिपेंड्स. ओके, 1 मार्क मोस्टली, बिकॉज फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना. सो फॉर्मूला इज वेरी मच नीडेड. सो मार्शल एजवर्थ में न्यूमरेटर्स ऐड करते हैं हम लोग, which is P1Q0 and P1Q1. Then P0Q0 and P0Q1 into 100. तो P1Q1 कितना? P1Q0 कितना है? P1Q0 है 825. P1Q1 कितना है? 715. P0Q0 कितना है? 615. P0Q1 कितना है? 532. Okay, so 5 and 5, 0, it is 4 and it is 15. 7, 4, 11. Okay, so how much I'm getting? Let's see. 1540 divided by 1147. So it is 134.26. 134.26. Okay,
So these are the ways to find out your index number. So ये सबसे easy chapter था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले खत्म कर लिया. एंड आई होप यही चैप्टर, मतलब इंश्योरेंस एंड एन्युटी से तो ये चैप्टर बेटर लगता होगा सबको. ओके उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हर एक क्वेश्चन अलग है. एंड जिनके मैथ्स के फंडामेंटल्स क्लियर है ना, उनको वो परसेंटेज, फिर वो रिलेट करना, वो सब चीजें इजी जाती है. लेकिन जिनके मैथ्स के फंडामेंटल्स थोड़े वीक है, उनको वो थोड़ा सा हर एक क्वेश्चन अलग अलग लगेगा. ओके सो नो वरीज, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रैक्टिस इज नीडेड, ओनली दैट इज द थिंग. Okay, so we will stop here.